Lodha. She left her career in US and has been working in the education field for past 1 year. She founded Radiance with a mission to fulfill her father, Sri Anil Lodha's dream to give the highest quality education to all sections of the society. With this vision to benefit maximum people, she has invited Nikhila Kothari to talk with all of you on the important topic related to mental health of children. We have, like you guys, we have experienced a lot of aggression in our hitting, shouting. As parents, sometimes we tend to take it reflection of our parenting. मी असं वागत नाही, तू असं का वागतोयस? मी तर हे केलंच नाही, तू असं का करतोयस? We deal. This is a big deal for us nowadays. Definitely, this is the question for many of our parents. At Radiance, we firmly believe in Montessori methods, and we address it on multiple levels at schools, in home, with our parents and children. And today, we have with us Ms. Nikhila Kothari, who comes from a lineage of doctors to help all of us just to deal with this thing. Nikhila ma'am, Nikhila ma'am has done bachelor's, master's, and post-graduation in mental health for children and teenagers. She has been guiding schools, teachers, parents, and students on their behavioral issues, career, and relationships, etc. Uh, to start with the session, I will just request all of you, we'll just follow some protocols for this session today. First thing we will, आपण बेसिकली सगळं आपल्या गोष्टी म्यूट करू. म्हणजे क्वेश्चन आन्सर जे काही असतील, निखिला मॅमला आपल्याला सगळ्यात एंडला ऍड्रेस करता येईल. आणि सगळ्यांनी आपले व्हिडिओ कॅमेराज ऑन ठेवा, सो दॅट हे अगदी इन्फॉर्मल मीटिंग वाटेल की अगदी समोर बसून बोलतोय आपण सगळं असं वाटेल. आणि we will talk about the generic behavioral issues due to limited time we have. If we are not able to take any personal issues, you can reach anytime to Nikhila ma'am for the consultancy and Monali ma'am for questions related to schooling. So, ma'am, over to you. Okay, thank you, Akshata, so much for a wonderful introduction. Is everybody okay with Hindi? And also, I would request, Akshata has already mentioned कि आप please अपने videos on रखो. So I would again request, please keep your videos on so that it becomes it gives more of a personal touch, and you know, I can actually see you all, and at least I can ask a few questions here and there. Like Akshata already mentioned that we will take the questions in the end. If in case you still have any doubts, you can please raise the hand. Akshata, I think I would request you to please address the questions. If somebody raises the hand, please inform me to stop so that I can stop and we can continue ahead. Okay. So without taking more time, I would just want to start. Monali, I think you will have to enable me to share my screen. Done. Yeah. So we are going to look at some of the strategies to overcome aggression in children. Children is a very broad concept. For this presentation or for this webinar, we are going to cover only from children 3 years to 9 years of age. If you have beyond 9 years, probably some other time we can address them. But for now, in this session, we are going to address only from 3 to 9 years old. Now, I would want to hear from you guys as to what difficult situations you have been. I know that some of you shared that, you know, your child has started hitting or your child has started doing XYZ things. I want to know what things exactly your child has started doing, which you feel are very aggressive or not acceptable behavior. Anybody would want to share why they feel that aggression is rising in their children? Okay, I would give an example. I would give an example and you tell me whether aggression is seen in such situation or no.
Okay, so there are two friends who are fighting. One is Sarah and one is Amy. Sarah wants to play with a toy. They are playing in a garden, and suddenly Amy brings a toy from home which Sarah wants. So what Sarah does is she politely asks Amy first that can you please give me the toy. Amy refuses. She says it is my toy. I don't want to give it to you. Now Sarah is very angry. She pushes Amy on the floor and she snatches the toy away from from Amy. Is that aggression? Yes, Yes, it is aggression. Why do you think it is aggression? because if the other one is not giving the thing, he or she is like very aggressive. Then why I'm not getting it? Why that person is getting it? Actually, my thing is I have a twins, and one Okay. is boy and a girl, right, of the same Okay. age. It's very Okay. difficult for me, to handle both of them. Sometimes they play together full time. It's very nice, but at the moment suddenly I want this, you want that, you did this, you and they start. And if I say something to one, the other one will say, you are telling her, you're not telling me. You are loving him, you're not loving me. And and the thing starts on, and then it's so much aggression in the child, both of them, especially my boy. Like he can't handle his anger. That's the main problem. He starts hitting, and my girl, she start pointing him, and then he starts hitting. So it's very difficult for me, especially like for twins, it's very difficult for me to handle all this. Right, right. Anybody else who would want to add what exactly aggression they have seen in their children? Okay, so as we move ahead, we will see a few more examples. So I have a question for all of you. Except for aggression, what other things you have seen commonly which are disturbing and which you have seen in your children, especially during this lockdown? Except hitting, kicking, what other issues you have seen in your children? Or you felt that, this is something that we need to talk about? So perhaps They are Nikhil, getting, yeah, sorry, go ahead, go ahead. they are getting bored at home. I'm getting Okay. bored, what to do, what to play. They are fed up with all their toys, and Okay. just for time pass, what to do? That's the main question for them. Okay. Anybody else? So Nikhil, a lot of parents have, observed that there's increase in screen time because Screen time, absolutely. So for me, I have seen my daughter is not very comfortable when she is interacting with, let's say, relatives or who, like, for past 1.5 year, I think nobody has visited our house, the way it used to be earlier. So she is Okay. uncomfortable at least for 15 to 20 minutes, and then she starts opening up. So it is difficult for her to handle people who are a bit stranger to her Okay. for a like good amount of time, like 15-20 minutes, half an hour. Okay. Regarding my case, recently my child is like giving you an example at night if she is getting disturbed or if she is very angry, she asks for her blanket. And when I give her a blanket, she refused it. I don't want the blanket. Then I again remove the blanket. Again, she asked me for the blanket, crying, give me the blanket. Not just blanket, even in a daily routine, if she asks me something and she is angry and I'm giving it immediately, she refuses it. Then again she said, I don't want it. Then I want it. It's kind of repetitive since few weeks. And it is very confusing. Exactly what she wants. Yeah, it is. It is absolutely. Okay. Few One more examples thing, I had. yeah, I Yeah, just go wanted on. to Go on, share please. that because of no, the lockdown, like because the school is not there, there's no fixed timetable for the children, Schedule. especially. Yeah, schedule. Yes. So they are very reluctant to have bath and all those things on a in time. So that causes a lot of friction, and
That is what I mean. Yeah, of course, it does cause a lot of friction. घर में झगड़े होते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, और फिर बाकी लोग होते हैं, तुम क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो, छुट्टी तो है, स्कूल ही तो नहीं जाना है, No, in etc our etc case, etc. it is different. Like Okay. in my house, others are like, तू का त्याच्या मागे नहीं लागत है, मतलब आप क्यों उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो? And I'm अच्छा, like, oh, it's okay, okay. let him do according to him. So it's the other way around. I think it is great then. It is great. Okay, few things which I had jotted down which came up to my mind were back answering, screen time, which Monali rightly pointed out, setting up a routine, which one of the ma'ams just said right now, eating issues. Children are not eating the homemade cooked food and they want to eat out and they are मुझे ये सब्जी नहीं खानी है, वो सब्जी बना दो, वो सब्जी बना दो, etc. Throwing things, गुस्सा आ गया, बस इधर ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, etc. And of course, nevertheless, kicking is तो favorite है हमारे बच्चों का. Okay, so what exactly is aggressive behavior? ये गुस्सा करता है मतलब क्या करता है? गुस्सा करना is not something which is not acceptable. गुस्सा सबको आता है, आपको आता है, मुझे आता है. In general, फैमिली में हो, घर में हो, बाहर हो, वर्किंग एटमॉस्फेयर में हो, गुस्सा सबको आता है. और हमें हमारे बच्चों को यही सिखाना है कि बेटा गुस्सा आना इज नॉट रॉन्ग, गुस्सा आना इज राइट, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो, दैट इज समथिंग दैट हमको उनको सिखाना है या हमको उनको बताना है कि हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं. एक्सप्रेस मतलब हम दूसरों को गुस्सा आया हुआ है हमको, वो हम दूसरों को बताते कैसे हैं. हम वर्बली उनको बता सकते हैं, कोई बिहेवियर करके उनको, तो मतलब दूसरों को मारना इज नॉट द राइट काइंड ऑफ बिहेवियर. ओके, दूसरों को हमको जब हमारा गुस्सा एक्सप्रेस करना है तो हम दरवाजे जोर जोर से बंद करके हमारा गुस्सा नहीं बता सकते, कोई चीजें तोड़ के हम हमारा गुस्सा नहीं बता सकते. देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन एक्सप्रेस योर एंगर. So we have to teach our children the ways to express their anger. Before we go to how do children should express their anger, before we go there, let's look at the causes कि गुस्सा आता क्यों है. So there are two aspects to why children become aggressive. One is hereditary and second is environment. तो साइकोलॉजी में ये बहुत पुराना डिबेट चल रहा है कि हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की, वो नेट मतलब मम्मी पापा से बच्चों को आया है या बाहर के किसी एनवायरनमेंट से बच्चों को आया है. अब अगर हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है मम्मी पापा से बच्चों को आया है, लेकिन हम लोग एक चीज ये ध्यान में रखते हैं कि हम लोग जो भी करते हैं, whatever we do, we cook food, we eat, we earn money, we spend money, we are doing everything for our children. ओके, सो अगर हमको पता है कि ये हमारे से हमारे बच्चों में आया है, तो वी शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कि ये उसके बच्चे से आगे की जनरेशन में ना जाए, या उसका जो ये गुस्सा आज की डेट में है वो उसके फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट ना करे. इसलिए एक हेरिडिटरी फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और एनवायरमेंट मतलब वो कौन से एनवायरमेंट में पल रहा है, बढ़ रहा है, वो आपसे हर चीज देख के आपकी सीख रहा है. तो वो हम लोग उनको मूवीज दिखाते हैं, एक्शन मूवीज दिखाते हैं, या फिर बच्चों आजकल तो जो कार्टून्स आते हैं, जो छोटा भीम वगैरह जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं. Nikhila? Nikhila, can you hear us? आवाज पण क्लिअर नाही येते मॅम, मध्ये खूप ब्रेक होतोय आवाज पण त्यांचा. अच्छा, आत्ता असं होतंय बहुतेक. आत्ता फक्त आधी हो हो. उसमें तो we lost you after Chota Bheem. Okay, I think she dropped off for a minute. Oh, okay, yeah. Nikhila, will you share it again? Yeah, you're muted also and screen bhi chala gaya.
Okay. Yeah, so I was just saying कि कितनी बार ऐसा होता है कि चलते चलते अगर बच्चे को दरवाजा लग गया, बच्चा रोने लग गया, तो हम उसको ठप दरवाजे को एक ऐसे ठप करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा इसने मारा, अच्छा ये गलत है, अच्छा इसके वजह से तेरे को लगा, ले मारा। तो वी आर समवेयर पोर्ट्रेइंग, वी आर टीचिंग आवर चिल्ड्रन कि ऐसे मारोगे सामने वाले को लगेगा और वो रोने लगेगा। तो दिस इज व्हाट आवर चिल्ड्रन आर लर्निंग फ्रॉम अस कि और जब बच्चे इतने छोटे होते हैं उनमें वो समझ ही नहीं होती है कि ये सही है या ये गलत है। वो देखते हैं कि अच्छा मम्मी कर रही है, अच्छा पापा कर रहे हैं, तो इट इज अलाउड, तो इट इज ओके इफ आई डू इट। दिस इज व्हाट अननोइंगली वी आर डूइंग इट। तो अब लेट्स लुक एट द फ्यू थिंग्स और what are the characteristics of an aggressive child। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बच्चे में अगर हम देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा एग्रेसिव है। ओके, बहुत इजीली और बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज करता है, बहुत गुस्सा यानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि एकदम लाल हो गया, या फिर बहुत ही जोरों जोरों से टैंट्रम्स करने लग गया, या फिर चीजें बहुत ज्यादा तोड़ने लग गया, फेंकने लग गया, जिसको सोशल सिचुएशन में और फ्रेंड्स बनाने में डिफिकल्टी होती है। सोशल सिचुएशन मतलब हम लोग कहीं बाहर पार्टी में गए हैं या हम लोग कहीं बाहर होटल में गए हैं, उस सिचुएशन में वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है या जिसके दोस्त नहीं बन पा रहे। क्यों आपको ऐसा लगता है कि अगर दोस्त नहीं बन पाए तो वो उसको बहुत गुस्सा रहेगा? एनी आइडियाज? ओके, इंसान जब पैदा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, ही इज अ सोशल एनिमल, उसको आसपास लोग चाहिए होते हैं। वैसे ही जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, उनको फ्रेंड्स की बहुत जरूरत बढ़ती जाती है। तो अगर वो दोस्त नहीं बना पाए या दोस्त वो टिका नहीं पाए तो उनको बहुत गुस्सा आता है, तो एग्रेशन लेवल कुड इंक्रीज। घर पे हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं। ये तो थोड़े बच्चे जैसे बड़े हो गए, 9 साल के हो गए, 8 साल के हो गए, जब वो हमेशा मतलब बड़े हो रहे हैं और हमेशा पेरेंट्स के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। अगर मम्मी ने बोला है कि ये ड्रेस पहन के जाना है, वो बच्चे को ड्रेस पहनना ही नहीं है, नो मैटर व्हाट मामा मम्मी कितना भी कुछ भी बोले, नो मैटर व्हाट उसको वो ड्रेस पहनना ही नहीं है। मतलब वोंट एक्सेप्ट पेरेंटल अथॉरिटी, यानी अगर मम्मी ने बोला ये करना है तो वो उसके ऑपोजिट करेगा। मम्मी ने बोला नहा के आना है तो बच्चा सो जाएगा। तो वो रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे जो एल्डर्स मुझे बता रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए है। हमेशा खुद को दूसरों को ब्लेम करता है, मैंने ऐसे नहीं किया, उसने मुझे मारा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था। या फिर अगर स्विंग खेल रहा है या फिर कुछ टूट गया घर में, नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो वो भागता हुआ आ रहा था। दूसरों पे हमेशा ब्लेम करना। और एक बात बहुत कॉमनली जो हम लोग नोटिस करते हैं या फिर साइकोलॉजी जो प्रूव करता है कि अगर बच्चा एग्रेसिव है, अगर बच्चे में एग्रेशन है, तो वो आपको स्कूल में दिखेगा, घर में दिखेगा, कोई बाहर अगर खेलने जा रहा है वहां दिखेगा, या फिर स्पोर्ट्स में अगर वो बहुत अच्छा है तो अगर वहां पे आपको दिखेगा। यानी हर जगह पे आपको वो दिखता रहेगा कि अगर बच्चा एग्रेसिव है तो। अगर आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सिर्फ घर में ही सबके साथ झगड़ा कर रहा है, बाहर झगड़ा नहीं करता है, मतलब घर में कुछ तो भी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो झगड़ा करता है। लेकिन अगर स्कूल में अगर आप देखोगे कि सिर्फ स्कूल में झगड़ा करता है, घर पे तो झगड़ा ही नहीं करता है, तो स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है, स्कूल में टीचर्स उसको ऐसा कुछ बोल रही है या स्कूल में बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ स्कूल में झगड़ा कर रहा है लेकिन घर पे नहीं कर रहा है। वैसे ही एथलेटिक एक्टिविटीज हो गया या सोशल इवेंट्स हो गया, कुछ ना कुछ ट्रिगर रहता है। ट्रिगर मतलब कौन, ट्रिगर यानी जो चीज उसको बढ़ावा दे रही है, यानी उस गुस्से को और बढ़ावा दे रही है। दोज आर द ट्रिगर पॉइंट्स फॉर द चाइल्ड। सो व्हाट मेक्स अ चाइल्ड एग्रेसिव? बच्चों को गुस्सा क्यों आता है? फर्स्ट इज फिजिकल फियर। अगर बच्चे को पता है कि मेरे से अभी छोटा भाई या बहन आने वाला है, मेरा ध्यान मेरे पास कम होने वाला है और उसके पास ज्यादा होने वाला है, या फिर जब न्यूबॉर्न बेबी आता है और मम्मी पापा का सब अटेंशन वो न्यूबॉर्न बेबी के पास चला जाता है और इसको अटेंशन नहीं मिलता है। पहले
कैसे सब लोग इसको ही ज्यादा पैम्पर करते थे और उसको अटेंशन कम देते थे। तो अगर वैसा कुछ डिस्क्रिपेंसी आने लग गया तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। फिर हम देखते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि हम नोटिस करते हैं कि वो छोटे बच्चे के साथ अच्छे से खेल नहीं रहा है या फिर दूसरों को मार रहा है या हिटिंग वगैरह हो रहा है। फैमिली डिफिकल्टीज और डिस्कॉर्ड। सो फैमिली डिफिकल्टीज जैसे फैमिली में किसी चीज को लेके प्रेशर है, अगर मम्मी पापा में बहुत झगड़े हो रहे हैं या फिर सास बहू में झगड़े हो रहे हैं या फिर अंदर फैमिली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर बहुत हो रहा है तो वो बच्चे को चिड़चिड़ा बना सकते हैं, बिकॉज वो नहीं कोप अप कर पाता है कि ये सब जो झगड़े वो देख रहा है वो उसको नहीं कोप अप कर पाता है। वो उसको कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है बच्चे के मन में, और वो डर भी उसको एक्सप्रेस करते नहीं आ रहा है, इसके लिए वो गुस्सा कर रहा है। लर्निंग डिसऑर्डर्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसे कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे ADHD हो गया या हाइपर एक्टिव बच्चा है या फिर उसको ऑटिज्म है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो चिड़चिड़ा हो सकता है। इसको ये एक्चुअली जब बच्चे 8 साल के बाद आते हैं तब उनको पता चलता है कि तब आइडेंटिफिकेशन शुरू होने लगता है कि शायद इसको कोई बीमारी हो सकती है। जैसे बच्चा फर्स्ट में गया, सेकंड में गया, तब हम बोल सकते हैं कि इसको एक्स्ट्रा टेस्टिंग कराओ या फिर इसको किसी दूसरे डॉक्टर से मिलाओ एक्सेट्रा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोई माइंडफुल प्रॉब्लम्स होगी जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो भी आफ्टर 7 इयर्स ऑफ एज। इमोशनल ट्रॉमा, जैसे मतलब ऑब्वियसली अभी तो बहुत कम होता है, अभी तो नॉर्मली देखने मिलता भी नहीं है, पर कोई कोई फैमिलीज में अभी भी डोमेस्टिक अब्यूज होता है। आजकल सेक्सुअल अब्यूज ज्यादा होने लग गया है, जो हम लोग बहुत कम बात करते हैं जिसके बारे में, बट बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल ट्रॉमा बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, इसलिए फिर वो गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो इमोशनल ट्रॉमा भी इज one of the very big reasons why children get aggressive. Exposure to violent television shows and movies. अब आजकल बच्चे घर पे हैं तो ज्यादा टाइम टीवी देखते हैं। हमने पहले डिस्कस किया, जैसे कार्टून शोज हो गए, जैसे मूवीज हो गई, आजकल गेम्स बहुत आ गए, बच्चे गेम्स बहुत खेलते हैं, तो गेम्स की वजह से भी बहुत सारा वायलेंस बच्चों को एक्सपोज होता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई चिल्ड्रन गेट एग्रेसिव। तो अब हम क्या कर सकते हैं? स्टे काम योरसेल्फ। अगर आपको पता है कि बच्चा गुस्सा करने लग गया है तो आप खुद शांत रहिए, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज है एक्सप्रेस करने के लिए। आप गुस्सा कर सकते हो, आप वर्बली बोल के बता सकते हो। बच्चे के पास लैंग्वेज ही नहीं है, मतलब 3 साल के बच्चे के पास इतनी लैंग्वेज ही नहीं है कि वो बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो आप ऐसे सिचुएशन में आप खुद काम रहिए, आप खुद ध्यान रखिए कि बच्चे की कितनी भी आवाज बढ़ गई हो, आपको आवाज नहीं बड़ी करनी है। टीच योर चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड हिज ओन इमोशंस। आपको बच्चों को एनकरेज करना है कि वो खुद अपने इमोशंस को समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टीच द चाइल्ड की give language to his emotions. I know you're feeling bad because the toy has broken. I know that you are not feeling well today because you wanted to go for the movie and you were not able to go for the movie. तो उसको खुद के इमोशंस को लेबल करना सिखाइए। जैसे आई एम फीलिंग सैड, तो सैड को आई एम फीलिंग एंग्री। अगेन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों को गुस्सा करना ये गलत नहीं है, बच्चों का गुस्सा एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं वो गलत चीज है। मतलब अगर वो मार के करते हैं तो वो गलत है, लेकिन वो एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए वो भी, उस पे भी हम बात करेंगे। पर आप उनको वैसी टेक्निक्स सिखाइए जिससे वो एक्सप्रेस कर सके। अगेन, show him some acceptable ways of letting anger, fear and disappointment show. उसको एक्सप्रेस करना सिखाइए कि कैसे वो एक्सप्रेस कर सकता है ये फीलिंग्स को। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, नॉट आफ्टर 10 days। अगर बच्चे ने कुछ तोड़ दिया है, आपने उसको थोड़ा बहुत चिल्ला दिया, उसको बोल दिया अपने रूम में जाके बैठो, जैसे ही उसका ऐसे थोड़ा सा उसका गुस्सा शांत हो गया, बच्चे का गुस्सा शांत हो गया, आपका गुस्सा शांत हो गया, जाके तुरंत उससे बात करो, जाके तुरंत उसको समझाओ,
या फिर अगर आपको उसको बोलना है कि अगर आपको उसको कोई पनिशमेंट देनी है या फिर कुछ करवाना है उससे, या फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसने कोई चीज तोड़ दी है, अगर आप चाहते हो कि उसने वो साफ सफाई कर लेनी चाहिए, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो साफ करे, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि इसको वो साफ करे या फिर वो उठा ले, तो उसके लिए आपका एक्शन उस पे तुरंत आना चाहिए। 10 दिन के बाद आप बोलोगे कि 10 दिन पहले तुमने ये किया था, उसका ये पनिशमेंट है, नहीं। इन द सेम वे अगर कोई बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, अगर गलत बिहेवियर किया, तूने रॉन्ग किया, तूने रॉन्ग किया, लेकिन अच्छा किया उस पे हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते। वैसे ही अगर उसने कोई अच्छी चीज की, फॉर एग्जाम्पल दो भाई या एक भाई एक बहन खेल रही है और उन्होंने कोई चीज शेयर की एक दूसरे के साथ, हम उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करते। तो जो बच्चों को जिनको गुस्सा बहुत आता है, उनको अच्छी चीजों के लिए आप एक्नॉलेज कीजिए, उनको रिवॉर्ड दीजिए। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म वेयर उनको फिर मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने अगर अच्छा काम किया तो भी मुझे एप्रिसिएशन मिलता है, मुझे समझा जाता है। कूल डाउन देन डिस्कस व्हाट हैपेंड। अगर गुस्से में आप भी गुस्से में है और बच्चा भी गुस्से में है, दोनों की आर्ग्यूमेंट्स चलती जा रही है, दैट इज नेवर एंडिंग देन। फिर अगर उसको कूल डाउन होने दीजिए, आप कूल डाउन होइए, फिर डिस्कस कीजिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली, अगर आपको आपके बच्चे को डिसिप्लिन करना है, तो ऐसा नहीं कि अगर आज तूने ये चीज तोड़ी तो तेरे को आज पिटाई होगी और दूसरे दिन चीज तोड़ी तो पिटाई नहीं होगी। उसको कंसिस्टेंटली रखिए। अगर आज उसने कुछ अच्छा काम किया है तो आज उसका रिवॉर्ड मिला है, तो 4 दिन बाद उसने अच्छा किया तो 4 दिन बाद भी उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ऐसे अगर आप उसको कंसिस्टेंटली रखेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं, मुझे इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो मुझे गलत काम के लिए कभी अच्छा नहीं कहा जाएगा। गलत है, जैसे अगर झूठ बोला है तो झूठ बोलना इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो उस झूठ बोलने पे हर बार उसको डांट मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आज झूठ बोल दिया, अच्छा आज बच गया लेकिन कल डांट पड़ेगी, या परसों बच गया या कल आज डांट पड़ेगी। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी रखिए। प्रमोट सेल्फ कंट्रोल, प्रेज हिम फॉर बीइंग गुड। आप भी खुद पे कंट्रोल रखिए, बिकॉज जब आप भी गुस्सा करते हो, बच्चा आपको देख के भी सीख ही रहा है। तो आप भी सेल्फ कंट्रोल रखिए, और अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है, उसने अच्छा बिहेवियर आपको दिखाया, तो उसको भी प्रेज कीजिए, सबके सामने उसको अप्रिशिएट कीजिए कि आज तुमने गुस्सा नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुमने ये सब्जी, अगर सपोज XYZ सब्जी नहीं खाता है, भिंडी की सब्जी फॉर एग्जाम्पल नहीं खाता है, तो तुमने आज भिंडी की सब्जी खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, एक्सेट्रा। मेक देम रिस्पॉन्सिबल। अगर बच्चे ने कुछ गिरा दिया है, से फॉर एग्जाम्पल दूध गिरा दिया है टीवी देखते देखते, कुछ नहीं, उसको बोलिए ये रहा मॉप, ये रहा कपड़ा, इसको साफ करो। इट इज ओके, मेक देम रिस्पॉन्सिबल। आज ठीक से नहीं करेगा, कल ठीक से नहीं करेगा, परसों तो सीख जाएगा, फिर ही विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। फिर उसको पता चलेगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये जगह पे यहाँ पे रखना है, ये वहां पे रखना है, एक्सेट्रा। टीच द मॉरल लेसन्स फॉर नॉट एक्टिंग एग्रेसिवली। हम लोग बचपन में हमारे नाना नानी से, दादा दादी से कहानियां सुनते थे। वो कहानियां एक मॉरल स्टोरी रहती है कि उसमें वैल्यूज होते हैं। आजकल स्कूल्स में भी वैल्यू एजुकेशन का एक स्पेशली पीरियड रहता है, बिकॉज वैल्यू लेसन्स जब हम बच्चों को सिखाते हैं, यानी अगर किसी बच्चे ने अच्छा बिहेवियर किया या किसी को मारा नहीं, तो उसमें उससे हम लोग एक मॉरल स्टोरी बना सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा है या फिर ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो उसको एक ऐसी स्टोरी फॉर्म में बनाइए कि पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा ऐसा है, लेकिन वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, फिर उसको सब प्यार करते हैं, फिर उसको सब एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में। तो ऐसे स्टोरी बना के आप उनको बताइए, जैसे अगर वो गुस्सा नहीं करेगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वो उसमें ऐड करके आप उनको बता सकते हैं। डोंट गिव इन टू टैंट्रम्स और एग्रेसिव बिहेवियर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा अगर बच्चे को चाहिए है फॉर एग्जाम्पल एक पूरी कैडबरी, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एक बड़ी सारी कैडबरी चाहिए है,
और बच्चा प्लेग्राउंड पे ना सॉरी मॉल में गया है और उसने वो कैडबरी देखी और वो वहीं पे हाथ पैर पटक पटक के ही स्टार्टेड डूइंग टैंट्रम्स, चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, मुझे चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही। आप उसको समझा के बोलिए कि ये तुझे अभी नहीं मिलेगा, या जो भी है, मतलब आपका अगर कोई टॉय के लिए वो ऐसे कर रहा है, कोई कैडबरी के लिए ऐसे कर रहा है, पर अगर वो जिद कर रहा है कि मुझे चाहिए ही चाहिए चाहिए, डोंट गिव इट टू हिम। उससे उसको इट विल बी अ रिवॉर्ड, फिर उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा अगली बार भी मैं टैंट्रम करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो आपको इस टैंट्रम में, जो बच्चे टैंट्रम करते हैं उसको आपको सकम नहीं होना है, आपको वो एनकरेज नहीं करना है, आपको बच्चे को टैंट्रम करने से रोकना है। तो ये ऐसे अगर आप उसके पास ध्यान नहीं दोगे, अगर आप आगे चले जाओगे, दे देना आप फिर ये आगे बच्चे चले को जाओगे, मालूम। ऑटोमेटिकली द चाइल्ड विल कम आफ्टर यू। इट इज जस्ट दैट द जब हम टैंट्रम, बच्चों के टैंट्रम्स देखते हैं, हम डर जाते हैं, अरे लोग क्या बोलेंगे कि कैसी मम्मी है, कैसे डैडी है, बच्चों के पास ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा ऐसा रो रहा है। इट इज ओके, बोलने दीजिए, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट इज राइट फॉर योर चाइल्ड। आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है, और आपको पता है कि ये ऐसे रोएगा, ऐसे रोड पे तमाशा करेगा, उससे उसको वो चीज मिलेगी, ऐसा नहीं है। ओके बच्चों को अपने जो इमोशन वो फील करते हैं उसको नेम करना सिखाइए। जैसे एंगर है, जैसे हैप्पीनेस है, जैसे लवली फीलिंग है, ब्रीजी है, सनी है, ये सारे उनको नेम्स है जो उनको आप वोकैबुलरी सिखाइए। और उनको आप एनकरेज करिए कि हर इमोशन को एक नाम होता है, और हर इमोशन को नाम देना उनको सिखाइए। स्लोली स्लोली जब आप भी वो वर्ड्स यूज करने लगेंगे, तब बच्चे भी वो वर्ड्स आपके साथ यूज करने लगेंगे। नो योर चाइल्ड्स पैटर्न एंड आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। अब आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉल में गए, अगर इसको कोई खिलौना दिख गया, जैसे हम सिटी सेंटर मॉल में जा रहे हैं और इसको बिग बाजार में कोई खिलौना दिख गया, तो ये वहां पे शुरू हो जाएगा। अगर आपको पता है ये होगा, तो दूसरे रास्ते से घुमा के उसको ले जाइए। तो आपको पता है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसका पैटर्न क्या है, और आपको पता है कि वो ट्रिगर कब होगा। अगर मैं सामने से स्ट्रेट बिग बाजार में चली गई, तो मुझे पता है कि ये ट्रिगर हो जाएगा, तो इसलिए फिर घूम के उसको लेके जाइए। तो आपने पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर लिया, और क्या क्या ट्रिगरिंग पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फाइंड अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। अब हमको ऐसा लगता है ना कि बच्चों को अगर हम कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज, बड़ी बड़े गिफ्ट्स लाके देंगे तभी बच्चे खुश होंगे, वैसा नहीं है। रिवॉर्ड्स यानी आप उनको कोई जैसे अगर आपने डिसाइड किया हुआ है एज अ फैमिली कि बच्चे का स्क्रीन टाइम इज से 1 आवर, अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो 1:15 मतलब 1 घंटे से और 5 मिनट एक्स्ट्रा टीवी टाइम इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड फॉर द चाइल्ड। एक्स्ट्रा पेंसिल, अगर स्कूल कंपास बॉक्स में आपने डिसाइड किया है कि बच्चे के पास दो ही पेंसिल्स होनी चाहिए, और रिवॉर्ड इज अ एक्स्ट्रा थर्ड पेंसिल, वो भी एक रिवॉर्ड है। तो अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड ढूंढ के निकालिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत बड़ा बड़ा फैंसी फैंसी देना है। बच्चे को डिसाइड करने दीजिए आज खाने में उसको क्या खाना है, बच्चे को डिसाइड करने दीजिए आज बाहर, कहीं बाहर जाना है, से फॉर एग्जांपल मॉल जाना है, तो तू डिसाइड कर कि तेरे को कपड़े क्या पहनने हैं। तो ऐसे अप्रोप्रिएट और छोटे छोटे रिवॉर्ड्स है जिसमें बच्चों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाते हो और उसको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हो। सेट क्लियर एंड डूएबल एक्सपेक्टेशंस। से फॉर एग्जांपल क्लियर मतलब अगर बेटा आप झूठ बोलोगे तो ये एब्सोल्युटली नहीं चलेगा, इट इज अ क्लियर एक्सपेक्टेशन। और डुएबल एक्सपेक्टेशन मतलब आप अगर बच्चे ने कुछ गलती की है, जैसे से फॉर एग्जांपल झूठ बोला है, तो आप बच्चे को ऐसा नहीं बोल सकते हो ना नीचे जाओ और बिल्डिंग नीचे से ऊपर 10th फ्लोर तक 10 बार ऊपर नीचे करो। दैट इज नॉट अ डुएबल एक्सपेक्टेशन, दैट इज नॉट अ समथिंग दैट अ चाइल्ड कैन डू। तो जो वो कर सकता है ऐसी चीजें उसको दीजिए, जैसे खुद का बेड बनाना है वो कर सकता है, उसके लिए उसको इनकरेज कीजिए। या फिर अगर खाना खाना लगाना है या सर्व करना है,
तो मैं आपको प्लेट बना के देती हूँ, आप सिर्फ दादा को दे के आइए या पापा को दे के आइए या मम्मी को दे के आइए एक्सेट्रा। तो जो एक्सपेक्टेशंस वो फुलफिल कर सकता है वैसे एक्सपेक्टेशंस उससे रखिए। ग्राउंडिंग टेक्निक, तो ग्राउंडिंग टेक्निक ऐसी होती है ना, इट इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब बच्चा बहुत गुस्सा होता है तो बच्चे को आप बोलते हो कि डीप ब्रेथ्स लो। तो उसको कैसे बताना है, उनको कैसे सिखाना है कि नाक से सांस लो और मुंह से सांस बाहर छोड़ो। आप बच्चों को ऐसा कर, आप खुद करिए और बच्चों को सिखाइए। जब बच्चा गुस्से में है वो नहीं करेगा, आप उसको एक बार ट्रेनिंग दीजिए, 2 बार ट्रेनिंग कीजिए, थर्ड टाइम वो करने लगेगा। उससे क्या होगा कि वो डीप ब्रेथ्स लेगा, उससे उसका गुस्सा शांत होते जाएगा। ऐसे आप उसको टेक्निक सिखाइए। अगर आप उसके साथ करोगे, ही विल लाइक इट, ही विल डू इट, ही विल फील एनकरेज्ड। तो उसको ऐसी ग्राउंडिंग टेक्निक सिखाइए। उसको ऐसा सिखाइए कि अच्छा, अगर तेरे को अभी, अगर आपको ऐसा पता है कि आपको अभी गुस्सा आ रहा है, जैसे बच्चे बड़े होते जाती है वैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं कि अगर पता है आपको कि गुस्सा आ रहा है तो 50 से 1 तक उल्टा काउंटिंग कीजिए। 50, 49, 48, 47 उल्टा काउंट करो, या फिर 10 डीप ब्रेथ्स लो, या फिर दूसरे रूम में जाके बैठ जाओ, दूसरे रूम में जाके कुछ दूसरा करो, सो दैट द कमिंग आउट। तो ऐसे आप अलग अलग टेक्निक्स उनको सिखा सकते हैं। उनको, बच्चों को आप ऐसा भी, अगर बच्चे ऐसे छोटे हैं 4-5 साल के हैं तो उनको आप ऐसे शेक करना सिखाओ। जब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है तो ऐसे शेक करो, उनको ऐसे बोलो कि ऐसे खुद को हक करो, एकदम टाइट, जितना टाइट हो सके उतना खुद को जोर से हक कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी और टेक्निक्स है जो आप उनको सिखा सकते हो। उनको आप पेपर दीजिए, उनको बोलो कि तेरे को, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप पेपर फाड़िए। और ऐसे बहुत सारे आजकल अमेज़न से वगैरह अगर हम कुछ मंगाते हैं तो उसमें बबल रैप जैसे आता है, तो बच्चों को बोलिए इसको, यू नो, ब्लो दिस बबल रैप, ये कीजिए। स्ट्रेस बॉल आता है, तो गुस्सा अगर आपका आता है, गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो इस स्ट्रेस बॉल को दबाइए, जिससे आपका गुस्सा कम हो सकता है। पिलो को मारिए, पिलो को पंच कीजिए, वो आप उनको बता सकते हो। और उनको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, डीप ब्रीदिंग सिखा सकते हो, बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप बच्चों को अभी से ही मेडिटेशन की आदत लगाओगे तो उनको आगे फ्यूचर में मेडिटेशन उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेडिटेशन इज बेसिकली सिटिंग एट वन प्लेस, क्लोजिंग देयर आईज एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर ब्रीदिंग। बच्चे अगर छोटे हैं तो हम उनको ऐसे भी सिखा सकते हैं कि आप आपके पेट पे हाथ रखो, और जब आप सांस ले रहे हो तब आपका पेट बाहर जाना चाहिए, और सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो आप अपने टमी पे हाथ रखो और ये एक्सरसाइजेस करते रहो, और धीरे धीरे ओवर द टाइम बच्चे सीख जाते हैं अपना गुस्से को कंट्रोल में लाना। गेट देम टू अ काम सेफ स्पॉट। एक काम और सेफ स्पॉट बच्चों के लिए होना चाहिए। जैसे घर में अगर उनका एक रूम है, रूम में उनकी एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। जब आप बच्चे को ऐसा लग रहा है, और बच्चे को पता होना चाहिए कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे मुझे मेरे सेफ स्पॉट में जाना है। आजकल बहुत सारे ऐसे हेवी ब्लैंकेट्स आते हैं, बच्चों को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो उनको वो हेवी ब्लैंकेट्स भी देते हैं, जिससे विच हेल्प्स देम काम। हेल्प किड्स आइडेंटिफाई वेयर दे फील एंग्री इन देयर बॉडी। तो उन बच्चों को ये भी एक्सरसाइजेस कराइए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मतलब क्या हो रहा है। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, हाथ पैर गर्म हो रहे हैं, सर दुख रहा है, सर फट रहा है, आंखें लाल हो रही है, या फिर पैर ट्रिम्बल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है मतलब क्या हो रहा है। और उनको फील करने दीजिए कि बॉडी के कौन से पार्ट में आपको क्या फील हो रहा है। उनको लैंग्वेज दीजिए एक्सप्रेस करने के लिए। अवॉइड लेबलिंग और फिजिकल पनिशमेंट। उनको मुर्गा बना के मत रखिए, उनको डंडे से, जैसे स्कूल में हमारे जमाने में जब हम छोटे थे तब हमको जैसी पनिशमेंट्स मिलती थी वैसी पनिशमेंट्स नहीं दीजिए। टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ अब हमने भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तू तो ऐसा ही है, तू तो नाकाम ही है, तू तो कर ही नहीं सकता, तेरे से तो होगा ही नहीं, और ये ऐसे सब, तू तो पागल ही है, तू तो स्टूपिड ही है, तू तो इडियट ही है। बच्चा वो अपने साथ मन में लेके लाइफ लॉन्ग तक रहता है।
मुझे अभी भी याद है, मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स ने मुझे एक बार बोला था कि निखिला तू पागल है, तेरे से नहीं हो पाएगा। एंड honestly it was very difficult for me to complete that 1 year and move ahead. अभी भी मुझे वो याद है कि मेरी टीचर ने मुझे ऐसा कहा था। तो ये सब अवॉइड कीजिए। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, सेट एन एग्जाम्पल। आप अपने बच्चों का इतना रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाइए कि बच्चे हर बार आपका सुनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन 90% उसने आपकी बात सुननी चाहिए। वो कब सुनेगा? जब आप उनकी बात सुनेंगे। जब आप उनको सुनोगे तभी वो आपको सुन पाएंगे। सेट एन एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सुबह 8 बजे उठे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप भी 8 बजे उठो। तो अगर आप 8 बजे, आप 8:30 बजे उठोगे और बच्चे से बोलोगे कि तुम 8 बजे उठा करो, तो वो तो नहीं चलेगा ना। अगर आप चाहते हो कि बच्चों ने आपकी बात माननी चाहिए, तो आपने भी उनकी बात माननी चाहिए। टॉक Nikhila, I think you got disconnected. Yeah. Nikhila? Nikhila? We can't hear you yet. Yeah. Yeah. So, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? उसके बच्चों को फोटोज दिखाइए, उसके बारे में बच्चों से बात कीजिए, उस बच्चों को एनकरेज कीजिए कि ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये आप कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते हो। आप उनको सिखाइए कि वैल्यूज मतलब क्या, जैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, चोरी करनी नहीं चाहिए, दीज आर ऑल वैल्यूज। तो ये वैल्यूज को आप प्रमोट करोगे तो बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज स्माइल करिए अपने बच्चों के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक स्माइल नहीं करोगे, जब तक आप खुश नहीं रहोगे, बच्चे खुश नहीं रह पाएंगे। प्लीज स्माइल फॉर योर चाइल्ड, एम्पथाइज विथ योर चाइल्ड। प्लीज ये समझिए कि आपके बच्चों को लैंग्वेज नहीं है, वो एक एकदम अननोन एनवायरनमेंट में आ गए हैं। ठीक है, वो उनके पेरेंट्स को जानते हैं, दादा दादी को जानते हैं, बट सोशल सिचुएशन में बाहर जब जाते हैं, वो वहां पे किसी को नहीं जानते। तो इसलिए वो आपको, इसके लिए वो आपके ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। इसके लिए उनके साथ एम्पथाइज कीजिए। बी कंसिस्टेंट। अगर आज एक रूटीन बनाने में हेल्प कीजिए कि हर रोज एक ही चीज होगी। बी अ रोल मॉडल। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनके पास जा सकता हूँ। वो आपको देखकर आपसे सब सीखते हैं। तो बी अ रोल मॉडल फॉर देम। टॉक टू योर चाइल्ड। इट मे बी वेरी सिली, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मैम आपने को बार बार ऐसे क्यों बोल रही है, बच्चों से बात करो, बच्चों से बात करो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट ऑल द थिंग्स। अगर आपको पता है, अगर बच्चा आके आपको बोल रहा है कि मैंने आज झूठ बोला है, उसको तुरंत डांटो मत, उसको तुरंत बोलो मत कि क्यों तूने झूठ बोला। फर्स्ट फाइंड आउट कि क्यों झूठ बोला। मे बी उसने किसी दूसरे बच्चे को बचाने के लिए झूठ बोला, मे बी कुछ और चीज करने के लिए उसने झूठ बोला। फर्स्ट find out why the child did what he did, then react, then respond. Be positive about the good things. उसने कुछ अच्छा काम किया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। दूसरों को बताइए कि उसने क्या अच्छी चीज की, क्या अच्छी बात की। तो be positive and encouraging about those things. And keep in mind that it's normal for child to digress once in a while. Once in a while बच्चों को गुस्सा आ सकता है, बच्चों को गुस्सा आना अलाउड है। आपको भी एज अ पेरेंट बच्चों पे गुस्सा आना अलाउड है, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन। वो बच्चे हैं, इसलिए वो हमसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने ही उनको बताना चाहिए, हमने ही उनको समझाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे हैं, वो हमारे ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। लास्ट में इट इज ओके टू फील मैड, वरिड, सैड, एंग्शियस, फ्रस्ट्रेटेड, बट डोंट हर्ट योरसेल्फ, डोंट hurt others, and don't hurt property. Conclusion. You can get in touch with me. You can note down my number. You
can note down my email address. And thank you. Any questions? Yes, I Priya? have very basic question. May I? Go ahead, go ahead. Yeah, मी ऍक्च्युली ahead. मराठीत एक्सप्रेस करते इफ यू डोंट माइंड, कारण मराठीमध्ये मला प्रॉपरली एक्सप्रेस हा हा करता येईल. चालेल. ऍक्च्युली चालेल. माझ्या घरी मेन इश्यू असं, माझी जॉईंट फॅमिली आहे, म्हणजे इन लॉज आहेत, 2 ग्रँड मदर्स आहे, तिला ग्रँडफादर आहे, सिस्टर इन लॉ आहे. सो प्रॉब्लेम असा होतो, फ्रॉम मोनाली मॅम आय हॅव लर्न मेनी थिंग्स, हाऊ टू डिसिप्लिन अ चाइल्ड, व्हॉट टू शो, व्हॉट नॉट टू शो. सो अकॉर्डिंगली मी ट्राय करते की ते इम्प्लिमेंट करायचं. बट जर चुका झाल्या तर वी नीड टू एक्सप्लेन देम की नाही, तू चुकली आहेस, तू सॉरी म्हणायला पाहिजे, तू एक्सेप्ट करायला पाहिजे. So she is refusing because she is hiding behind her grandparents, and her grandparents are supporting her. So in this case, what should Okay. because there's a long cold war between grandparents and mother. So how to handle in that Okay. situation? की आपण जर grandparents ला समजवतो की नाही हे चुकीचं आहे, ते बोलताना असं बोलता की आम्ही पण तुम्हाला असंच वाढवलं, तुम्ही तर चांगले मोठे झाले, मग तिला आम्ही असं शिकवतो तर काय हरकत आहे. So how to handle that? Okay. So first and foremost, तो बिहेवियर जो पण आहे, इज इट रॉन्ग और राइट? जैसे झूठ बोला, अगर बच्चे ने झूठ बोला, चुकीचंच आहे. हो, चुकीचंच आहे. बिहेवियर चुकीचाच आहे. So first you will have to explain it to the grandparents that I don't have a problem with the child. It is my child. I don't have a problem with the child. I have a problem with झूठ बोलना. आपको चलेगा क्या कि कल को जाके ये आपको आके झूठ बोलेगा? नहीं चलेगा. So it is not that the child is wrong. It is the behavior that is wrong. Exactly, because she hides behind them when I try to No, when so I try you to have to explain her. exactly. So you will have to say probably call a family meeting where all the elders in the family are involved and explain it to them or tell them very nicely and very politely. It is not the child that I'm targeting. I think your daughter's name is Sai, right? If I'm not wrong. Sia, sorry. So you are telling them कि मी सियाला टारगेट नहीं करत है. I have no problems with सिया. पर झूठ बोलेगी, चोरी करेगी या फिर किसी को मारेगी, that is not acceptable. और हमको वो बिहेवियर को चेंज करना है, हमको उसको नहीं चेंज करना है. Okay. And the second thing you mentioned very first slide ki it is either hereditary or environmental. So I don't think so environmental, कारण आम्ही तितकी काळजी घेतो because तिच्यावर impact पडेल म्हणून. Might be I am very much angry. मी खूप short tempered आहे. So मी खूप control करते, मी try करते to control my emotions also. But sometimes it comes out also. She immediately reacts the way I do. So in that situation, even I am not able to control myself. So म्हणजे मी आणखीन basically हायपर होऊन जाते. बेसिकली जे आपण मी तुम्हाला आता थोड्या वेळ आधी सांगितलं ना की यू विल हॅव टू टीच योर चिल्ड्रन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कि लंबी सांस लो और मुंह से बाहर छोड़ो, शेक योरसेल्फ, डांस करो, म्यूजिक लगाओ और डांस करो. तो सी गुस्सा आना इज वेरी नॉर्मल. हम लोग बहुत से फैमिलीज में ऐसा है कि गुस्सा आना ही एक्सेप्टेबल नहीं है. But it is a natural emotion. We are born with that emotion. बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको भी जब गुस्सा आता है तो वो सिर्फ रोता है कंटिन्यूस रोता है. तो इट इज अ नेचुरल इमोशन विच इज गिवन टू अस. तो हमको बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि तुम गुस्सा दबा के रखो. एब्सोल्युटली नहीं. एंड एज अ मदर यू ऑल्सो आप अपने गुस्से को दबा के मत रखो. एक्सप्रेस योर एंगर, इट इज अलाउड. लेकिन आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? जैसे डांस कर लिया, हाथ ऐसे शेक कर लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली, 20 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग कर लिया. ये आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और आपके साथ आपकी बेटी को भी इम्प्लीमेंट करने लगाओ. तो जो आप आज की डेट में से फॉर एग्जांपल यू आर 30 years old, अगर आप 30 में जो आप अभी सीख रहे हो वो आपकी बच्ची 4 साल 5 साल में सीख जाएगी. तो देन मे बी उसके आगे के फ्यूचर जनरेशन को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. I'll just add one thing here. Yeah. प्रतिमा, आता तुला माहिती आहे की तुला राग येतो, तुला माहिती आहे कदाचित ते जेनेटिकल असू शकतं. तर नाव लेट्स नॉट मेक इट अ वीकनेस, लेट्स नॉट मेक इट अ लिमिटेशन की माझ्यात आहे मग आता सियात तसंच येणार. रादर दॅन दॅट, आता
make it something that empowers you. Right. ओके, बरोबर. मला माहिती आहे आता प्रॉब्लेम कुठे आहे, सो आता मी हा रिझॉल्व्ह करू शकते, कारण माझ्याकडे ह्या सगळ्या Okay. टेक्निक्स आणि माझ्याकडे मॉन्टेसरी मेथड आहे. Exactly. Right? Yes, any other questions? So I will just add a few things, Nikhila. Yeah, sure. Yeah. So thank you so much for sharing your knowledge and your expertise, because I'm sure all the practical tips you have shared are going to help so many of us. I will just like to add a few things, just because discipline and mental health is taken very seriously in Montessori method too. So unlike how our educational system, हम लोग focus करते हैं पढ़ाई पर, but Montessori method में the focus is on the child and on the mental health of the child also. So a lot On of the things, child. yeah. So a lot of things that we discussed today, for example, cartoon या TV देखना या जो aggression TV से आता है. So I typically encourage all parents कि TV तो बिल्कुल भी नहीं, स्कूल घर में चलना ही नहीं चाहिए. So that जो कुछ problems हैं we sort of उनको पहले ही निकाल देते हैं. And अगर TV लगाना निकाल ही, देते हैं. अगर बच्चों को आदत है ही टीवी की, तो then there are ways in which we can sort of make it easier. जैसे एक ही मिनट, I'm just going to mute. Yeah. So we can make things easier by National Geographic देख सकते हैं, जहाँ पे the programs are where it's not like ऐसे stimulus नहीं है, there's not a lot of stimulus in terms of audio, video, a lot of fast motion video, ऐसा नहीं है. So that can be done, and in fact some parents have tried that, and that sort of calmed the child down already. And then with respect to other things, so when जब हमको पता नहीं होता है तो हमारे से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, बट नाउ दैट वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प. एंड सेम गोज फॉर Montessori मेथड ऑल्सो, लाइक right from the time that the child starts coming here, we sort of lay focus on this fact कि आपको अभी पता है, so model the right behavior yourself. So Yeah. the child will not look for appreciation from you. The child will be inner, उसका motivation अंदर से ऐसा रहेगा कि उसको ऐसा करने का मन ही नहीं होगा. मन ही नहीं होगा. Yeah, and he will not even Absolutely. look for reward from you, because ये सब ठीक है, मतलब हम लोग reward करेंगे, and in absence of anything else this reward technique works, but कब तक reward करेंगे ना? So when that, No, because yes, till the time the child is really small, correct. the more rewards you give him, the more it is going to encourage him. So eventually, yes, we can wean him off the rewards. Of course, when the child overgrows 9 years of age. So I Yeah. think this strategy still works, like Yeah. when there's nothing else, yes, perhaps this is what is going to work. But if for example you have the support of Montessori method for you, then perhaps you don't even have to rely on that. Okay. Just Right. focus on the child, where you are modeling the right behavior, and automatically The child is learning from you. yeah. And the beauty of it is, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि जैसे जब हम लोग इंडियन लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बिहेव करते हैं, है ना? यूएस में जाते हैं तो कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ता, कोई रास्ते पे थूकता नहीं है ना? तो वैसे ही होता है मॉन्टेसरी स्कूल में, जब बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो then there's a big transformation, because that is how everyone is behaving. And that just I just told you because I want to emphasize how important it is to model the right behavior. Model the right behavior. Yeah. So that when they see everyone around them is behaving this way, so naturally they will also behave. They will also behave. Absolutely. Absolutely. So any other questions, anyone? Very basic question की तिला जेवायला घालते. I tried many things की keep her hungry for few hours so that she'll eat her food, but no, I tried everything. She gets angry if I force feed her. What should I do? I think Monali is the best person to answer that. So Pratima, आपला 20th ला सेशन आहे न्यूट्रिशन वर. Okay.
And I think you're doing the right thing की ठीक आहे तिला जेव्हा भूक लागेल तेव्हा ती खाईलच ना. So I think what you're doing is right. फक्त त्याच्यात राग नको. ठीक आहे. एक्झॅक्टली बिकॉज राईट नाव सडनली फ्यू वीक्स मध्ये ती इतकी चिडचिड करायला लागली म्हणजे काही पण घेणार फेकून देणार किंवा अंगावर धावून येणार मारणार किंवा दुसऱ्यांना सांगणार की हिला मार सध्या जरा खूप जास्त झालं मग ते कळत नाही एक्झॅक्टली का होतंय नाही ऍक्च्युली कसं असतं ना की खूपदा लाईक मोनालीने जस्ट सांगितलं की मॉडेल द बिहेवियर तर जेव्हा ऍज अ फॅमिली तुम्ही एकत्र सगळे बसून जेवाल तर शी विल ऑल्सो रिअलाइज की इट इज इम्पॉर्टंट अँड दिस इज द टाइम दॅट वी ऑल शुड ईट लंच डिनर and when you Right. all sit together and one of the things which is really missing in nowadays in our families is sitting together and having a meal because ठीक है अभी लॉकडाउन है बट अदरवाइज हम लोग लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि बस बच्चों को मोबाइल दे दिया जल्दी जल्दी खाना खिला दिया एंड चलो लेट्स डू द अनदर स्टफ बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट तुम्हारे दिन का एक मील साथ में होना चाहिए एज अ Yeah. फॅमिली की एव्हरीबडी बरोबर. सिट टुगेदर अँड देन यू टेल देम की बघ आजी कसं खाते मग तू पण तुझ्या हाताने खायला पाहिजे मी बघ कसं माझ्या हाताने खाते मग मला तू पण असं खायला पाहिजे शो देम स्टोरी शो देम वीडियोज बहुत सारे ऐसे आप अगर YouTube पे देखोगे तो you will see a lot of social stories. Social stories are basically short stories which are encouraged or which are made in such a way that they encourage child. तो आप उनको सोशल स्टोरीज दिखाइए आप उनको मॉरल स्टोरीज दिखाइए जो और ऐसे या स्टोरीज ऐसे क्रिएट कीजिए कि एक छोटी बच्ची थी इतने मतलब से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स की थी फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ से खाना खाना शुरू किया वो मम्मी की सारी बातें सुनती थी और पापा का सारा काम करती थी एक्सेट्रा सो यू कीप ऑन टेलिंग हर इन दोज टर्म्स ओके so you will see a change Okay. and of course ये चेंज एकदम इमीडिएटली नहीं आएगा कि नहीं. अगर आप बोलोगे आज किया है मैंने और 2 दिन में तुरंत चेंज आना चाहिए ऐसा नहीं है इट विल टेक टाइम फॉर द चेंज टू कम बट इट विल कम डोंट लूज होप Yes. कंसिस्टेंसी रखिए और ये करते जाइए और बहुत सी बार ये भी है कि जब बच्चे सो जाते हैं जो बिहेवियर आपको उनमें चाहिए वो उनके कान में बोलिए आप धीरे से कि मम्मा विल रियली लाइक इफ यू ईट फूड और मम्मा विल रियली लाइक इफ यू लिसन टू एल्डर्स एट होम एंड यू विल स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस और उसको कंटिन्यूअसली जैसे 2 महीने 3 महीने बच्चों के कान में बोलते रहिए जब बच्चे सो जाते हैं तब यू विल सी अ डिफरेंस Okay. I'll try that. या श्योर Thanks. So we've hit the 4 p.m. mark. Thank you so much, Nikhila. And I'm sure a lot of you might still have questions, but sometimes we don't want to share it in an open forum. So you can always reach out to Nikhila. And Nikhila, I think can you share your contact details in the group chat so that they can reach Yeah, out? I'll share that again. Yeah. And I think you also had the feedback form that you wanted to share. Yeah, 1 second. I'll just share. Thank you very much. It was a very, very, very nice session, and we had learned a lot of things with that. Thank you so much, both of you all. Thanks a lot, dear. Thank you so much. Thanks to Nikhila. Ma'am, you wanted to take group photo? Yes. We want to take a group photo, right? So we need to You on all the, have a video. yeah. Great. If at all it's possible, Anchal, Pranoti, Snehal, Aditi. Okay, I'm just going to click. Great. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Nikhila, ma'am. Thank you, all of you. Okay, I think Nikhila has shared it. Can you share it with everyone? Her contact details. Yeah, I've posted on the chat. Cool. Thank you so much, everyone. See you tomorrow. Tomorrow we have the play session, play session at 3 o'clock. Thank you, Monali. Thank you for having me here. Thank It was nice talking to all of you. Thank you. Thank you, ma'am.